Hello student, Hemant Sir is here again. So we have started our chapter called light, and in light part we have only the dispersion part left. So we will cover today the dispersion of light. Along with we will also we will going to understand about the wheel, that seven colored wheel of, or we can say the dish wheel, which is provided by the Newton. Okay, it is nothing but the experiment in order to understand the dispersion of light in which seven colors are formed. That means these seven colors are nothing but the component color of the white light. We will understand that experiment on the basis of the dish wheel. Okay, so let's start today's session about the dispersion of light. Okay, so here we have the prepared notes that we had to go through it. Okay, so what is dispersion of light basically? So in diagram you can see here we have the prism here. Okay, it is the glass prism. Okay, and when white light passes through here, see, this is the way of light passes or enters inside the prism, and when it passes through the prism and emerge out, it divides into the seven component color, which is the red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Okay, so let's discuss what is dispersion of light. So the phenomenon of splitting of white light, the phenomenon of the splitting of white light into its seven component color, okay, into its seven component color, is called as beta dispersion of light. What is dispersion of light? The phenomenon of which the light split, or we can say the white light when split, okay, into its seven component color, when it passes through the prism, is called as dispersion of light. If you will understand, you can define that by different ways. Okay, the concept will be the same, but way of defining can be the different. Is it? Yes. Okay. So, splitting of white light into its component color is due to the fact that the light of the different colors travel with the different speed. Okay, that we will again going to understand on the cause of dispersion of light. Now, what causes the dispersion of light? This is nothing but the dispersion of light caused by the change of speed of light ray, okay, resulting in the like angle of deviation is different. Okay, like seven color, that like white light, it contain all the seven color. Okay, so all these seven color have different velocity or different speed inside the glass prism. That's why their angle of deviation is also different. That's why all these seven component color get separated from each other from the white light. Okay, so each wavelength of the light is different. Okay, so here we have the dispersion of light caused by the change of speed of light ray of each wavelength by the different amount. Okay, everyone? Yes. Okay. So the dispersion of light waves by the prism is shown in the diagram. So what you have to do? You have to like write all the points present over here, and you have to draw the diagram. Okay, because it is very important. So I want everyone have to take a screenshot first, and then after completion of this class, you can write on your notebook. Okay, so take a screenshot, everyone. Okay, so आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट से क्या समझा? आपको ये समझा कि जब लाइट रेस को हम प्रिज्म से पास थ्रू कराएंगे तो ये अपने सेवन कंपोनेंट कलर में सेपरेट हो जाती है. इसका मतलब कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ ऑल सेवन कलर, और इनका जो सीक्वेंस है ना बेटा, ये है विबग्योर. वी से वायलेट, आई से इंडिगो, वी आई
बी से ब्लू, VIBG, जी से ग्रीन, फिर वाई से ऑरेंज, वाई से येलो, फिर ओ से ऑरेंज एंड आर से बेटा रेड। ओके, सो विबग्योर, ये आपको 7 कलर का जो सीक्वेंस है वो याद रखना है। इसका मतलब जो वायलेट लाइट है इसके वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम है बेटा रेड कलर का। इसीलिए रेड कलर हमको दूर से दिख जाता है, इसलिए जो डेंजर का सिग्नल है हम रेड यूज करते हैं। ओके, so these are the very important thing that you have to remember. Why we are using that red color as a sign of danger? क्योंकि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है कम, सो कम होने के कारण ये ना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। अब जब लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी इसका मतलब ये दूर से हमको दिख सकती है, हाँ या ना? इज इट ओके? सो जब दूर से हमको दिखेगी इसका मतलब हम दूर से हमको डेंजर का सिग्नल दिखना चाहिए। ओके, इसलिए हमने जो रेड कलर है वो डेंजर को, डेंजर के साइन के लिए हमने चूज किया हुआ है। हमने नहीं, बहुत हमारे जो पुराने साइंटिस्ट है उन लोगों ने। ओके, सो दिस इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो लेट मी रिकॉल वन मोर टाइम व्हाट इज डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन इज nothing but the separation of all the 7 component color from the white light when it passes through the prism. ओके, जब लाइट रेस प्रिज्म से पास थ्रू हो जाती है तो अपने 7 कंपोनेंट कलर में सेपरेट हो जाती है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है कि हमने जब व्हाइट लाइट को पास थ्रू कराया प्रिज्म से और वो 7 कलर में डिवाइड हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो आपने ये बताना है कि जो देखो मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से लाइट रेज एंटर कर रही है ग्लास में, सो ग्लास के पार्टिकल्स ना बहुत पास पास में होते हैं। इसका मतलब जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, डेंस है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास में, लेकिन एयर के पार्टिकल तो रेंडमली बहुत दूर दूर है ना? सो एयर का जो मीडियम है बेटा उसको रेयर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर मीडियम। और जो ग्लास है उसके पार्टिकल एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है तो हम उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और उसका शेप कैसा? बिल्कुल ट्राइंगल के समान ऐसा। ओके, सो क्या होता है जब लाइट रेज एंटर करती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर देती है। ओके, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब व्हाइट कलर पास थ्रू कराते हैं हम प्रिज्म से तो व्हाइट लाइट की जो 7 कंपोनेंट कलर है सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, इसका मतलब सबकी वेलोसिटी दूसरे मीडियम में अलग अलग है, और उनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है, सपोज ये प्रिज्म का एक साइड है, यहाँ से लाइट रेज इंटर हुई तो वायलेट सबसे का जो डेविएशन पॉइंट होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर इंडिगो का, फिर ऐसा करते करते सबसे कम होगा बेटा रेड का। सो रेड का जो वेवलेंथ है वो कम है, इसीलिए उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी कम होगा, और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होता है वायलेट कलर का, इसलिए वायलेट कलर आपको एकदम बॉटम में मिलेगा और रेड कलर एकदम टॉप में। तो ये जो 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन मिलता है हम उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। व्हाट आर द 7 कलर्स? आपको बस विबग्योर याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR, वी वायलेट, आई इंडिगो, बी से ब्लू, वाई से येलो, ऑरेंज, रेड। वी हैव जी, जी तो भूल गए, VIB, बी के बाद आता है जी ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, सो ऐसे 7 कलर से मिलकर हमारी व्हाइट लाइट बनी हुई है। अब अगर हमने ऐसा सोच लिया कि हमने एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दिया कि हमने एक, अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन की। अब न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने ना एक व्हील लिया, ओके, एक राउंड व्हील लिया और व्हील को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसा 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 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 7 कलर में सारे के सारे कलर को विबग्योर के सीक्वेंस में फिल कर दिया। लेट मी शो यू हाउ, वेट अ सेकेंड। ओके, सो यू कैन सी हियर, ओके, ये जो व्हील है ये बेटा न्यूटन ने डिजाइन किया था, इसलिए हम इस राउंड शेप डिश को न्यूटन्स डिश भी कहते हैं। अब न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने ले लिया एक व्हील, व्हील को 7 पार्ट में डिवाइड किया, 7 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको ये सीक्वेंस में फिल भी कर लिया। ये है बेटा हमारा, वेट अ सेकंड, लेट मी राइट द नेम,
it is violet, indigo, it is blue, it is green, yellow, orange and red. 7 पार्ट में इक्वली डिवाइड करने के बाद उसको हमने क्या कर लिया, 7 कलर से हमने उसको फिल कर लिया। और जब हम उसको थ्रेड से घुमाएंगे, ओके सपोज ये व्हील है और हमने इसको ऐसा घुमाया, सो जब घुमाने के बाद क्या होगा कि ये जो व्हील के 7 कलर है वो डिसअपियर हो जाएंगे और फाइनली हमको व्हाइट कलर अपीयर होगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ओके, सो लेट डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स डिश एक्सप्लेन। ओके, व्हाट इज न्यूटन्स डिश एक्सप्लेन, क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो न्यूटन डिश इज द कलर्ड डिश। देखो ये कलर डिश क्यों है, क्योंकि हमने उसको 7 कलर से कलर किया हुआ है। हाँ, विच इज पेंटेड विथ द कलर ऑफ व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट के कलर कौन से बेटा, इट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 कलर से हमको इक्वली डिवाइड करके हमने इसको कलर कर दिया। ओके, इसी को हम इन शॉर्ट विबग्योर कहते हैं। ओके, इन इक्वल प्रोपोर्शन, देखो उनका प्रोपोर्शन भी इक्वल है, सो दैट व्हेन इट रोटेट, अब हम इसको रोटेट करेंगे वेरी फास्ट, तो क्या होगा, डिश विल अपीयर व्हाइट। सो डिश जो है वो व्हाइट अपीयर होगी। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर आईज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने आता है तो उसका इमेज रेटिना पर बनेगा। तो रेटिना पर जो इमेज रहता है वो 1 सेकंड के 16th पार्ट टाइम तक हमारे रेटिना में उसका इमेज बना हुआ रहता है। लेकिन अगर हमने व्हील को बहुत फास्ट रोटेट किया तो रोटेशन के कारण हमारे आई के रेटिना में सारे के सारे कलर एक साथ, यानी एक एक करके, एक रिमूव होगा तो एक ऐड होता जाएगा, है ना। हम इसको बोलते हैं व्हील करेंगे तो सारे के सारे जो कलर है वो एक के बाद क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर होंगे और दूसरा अपीयर होगा, फिर एक डिसअपियर दूसरा अपीयर। बट अपीयरेंस ऑफ टाइम और व्हील का रोटेशन का टाइम अगर डिफरेंस है, यानी व्हील ज्यादा रोटेट कर रही है फास्ट और यहाँ से डिसअपियर और दूसरा कलर अपीयर होने का जो टाइम है अगर वो कम है, तो हमको सारे के सारे कलर ऑब्जर्व हम सेपरेटली नहीं कर पाएंगे। और जब सेपरेटली हम कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स वो हमको व्हाइट कलर पे दिखेगा। ओके, सो लेट गो थ्रू दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, इसको हम कहते हैं बेटा द न्यूटन्स डिश एक्सपेरिमेंट। ओके, सो लेट डिस्कस दैट आल्सो, वेट अ सेकेंड। सो अब देखो आपके सामने एक व्हील है, व्हील को हमने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद देखो सारे के सारे कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं और बाद में फाइनली जो डिश है वो व्हाइट कलर में अपीयर हो रही है। ओके, सो लाइकवाइज ये है, अब यहाँ पर बहुत सारे कलर है बट हम यहाँ पर 7 कलर लेंगे। कौन से 7 कलर, जो हमारे विबग्योर में है। फिर हम इस व्हील को रोटेट करेंगे फास्ट, बहुत फास्ट, तो ये कुछ ऐसा अपीयर होगा एंड फाइनली ये व्हाइट कलर में अपीयर होगा। ओके, सो इट इज ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। सो लेट डिस्कस व्हाट इज द न्यूटन्स डिश यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। हम इसको जो डिश है न्यूटन की, हम क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द व्हाइट लाइट कंटेन 7 कलर और द 7 कलर को अगर हम मिक्स करेंगे तो व्हाइट लाइट फॉर्म होगी। ओके, लेट डिस्कस हुआ। सो क्या है यहाँ पे दिया हुआ, द न्यूटन्स डिश इज अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विच इज यूज्ड to demonstrate the 7 constituent color of the light। मीन्स लाइट के जो 7 constituent color है ये उसको demonstrate करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। The dish surface is painted by the 7 color in Vibgyor sequence and each of the color takes equal segment on the surface। अब दोनों का, सभी का जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए, मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन में। When the wheel spin, जब हम व्हील को स्पिन करेंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, spin up to the right speed, the color blend into the near recreation of white। यानी जो 7 कलर है वो वापस रिक्रिएट करेंगे व्हाइट कलर को। ओके, this white color wheat is created because our eyes cannot keep up
with the rapid rate at which the individual color are spinning. So हमारे आईज का जो persistence of vision time है वो है 116 सेकंड का, और इसको हमारी अब स्पीड से रोटेट करेंगे तो हमारी आई से एक पर्टिकुलर कलर को डिसअपेयर होना और दूसरे कलर को फॉर्म होने के लिए इतना टाइम नहीं होता जितने टाइम में हमारी स्पिन रोटेट कर रही है। ओके, इसीलिए हम सारे के सारे जो कलर 7 कलर उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और सारे के सारे कलर मिक्स फॉर्म में हमको अपीयर होते हैं, और जब मिक्स फॉर्म में अपीयर होंगे तो वो अपीयरेंस एक्चुअल में बेटा व्हाइट कलर का होता है। Okay, so this is all about the persistence of vision and the Newton's disk experiment to demonstrate the white light contains 7 different color. Okay, so I want everyone have to take a screenshot for that, और इसके पहले वाला भी जो पेज था उसका भी आपको screenshot लेना है। Okay, and every like single point you have to write down on your notebook also. Okay. Yes, so take a screenshot. I'm going to scroll it down. Okay, so student, here we have completed the today's session as well as this chapter. इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट के बाद हमने पढ़ा लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बाद हमने मिरर पढ़ा, मिरर के फिर टाइप्स पढ़े, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, फिर हमने पढ़ा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और भी बहुत सारे फिनोमिनन को हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किया है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू do check all the videos one more time in order to understand this chapter correctly. Okay, और हमारी जब टेस्ट होगी so I want everyone have to perform well, more than 95-96% I want your score, not less than that. Even you can take out of marks, then it is good for me. Okay, and it is good for you also. So at the end I am again going to remind you, if you have not subscribed the channel you can subscribe and do comment on the video. आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, सो दैट मुझे अच्छा लगा कि नहीं हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, सो बाय बाय, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर विथ द न्यू चैप्टर। ओके, so this is the end of this chapter beta. Bye bye.